हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया बच्चों। माय नेम इज़ मुकेश पालीवाल एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। ठीक है। अभी तक आपने मेरा एक भी वीडियो नहीं देखा होगा, मैंने डाला भी नहीं था 6 में पहले, बट दिस टाइम आई विल टेक वन ऑफ योर चैप्टर, नेमली डेसिमल। डेसिमल, हाँ। हैव यू एवर लिसन अबाउट डेसिमल? क्या होता है ये डेसिमल, हाउ इट वर्क्स, इसका मीनिंग क्या है? अगर हमें डेसिमल दिया हुआ है तो हम इसका क्या मतलब समझें? ये सब चीज़ें अब हम वी विल ट्राई टू डिस्कस इन चैप्टर डेसिमल। ओके, लेट वी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म डेसिमल, व्हाट एक्चुअली डेसिमल सिग्निफाइज। इमेजिन कीजिए, you have a ribbon, by the way it is a ribbon, correct? And suppose you divide it into two equal parts. Am I right? Suppose you divide it into two equal parts. You may say कि sir, this part which is now shaded can be written as 1 by 2. Am I right? It is 1 by 2. It is a method using which we can describe that part in the form of fractions. Am I right? It is actually we are representing it using fraction. You can say, sir, we are familiar about the term fraction and we know that fractions are usually used to represent the part of a single body. And if you are saying like that, then definitely you are correct. In the same manner, a decimal also used to show, to represent the parts of a whole body. Let me see how. The basic concept of the decimal starts with 10th part of a body. Suppose I have a body and I divide it into 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now the whole body is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Each part of that body can be represented by fraction as well as it can be represented by decimal. You can say, sir, in fraction it can be written as 1 out of 10, and the it is in the form of fraction, but in decimal it can be represented by 0.1. Just after decimal, the space is called 10th space. That what actually it signifies. इस 10th का मतलब क्या है? इस 10th का बेसिकली मतलब ये है कि if we divide the whole body into 10 parts, then among these 10 parts, how many parts we are taken into consideration? How many parts we are considering here? For example, I am considering only one part, that is why I am writing if I convert the whole body into 10 parts, then I am considering only one part. Let me take another example so that you can understand it very easily. Suppose I have again the same body, again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 part. And suppose this time I am taking
these three parts. Clear है? चलिए, in fraction you can represent it as 3 out of 10, but in decimal I can represent it. This 1 upon 10 is actually 0. And because I am taking 3 part out of 10, so I will write it as 0.3. What the 0.3 is representing? That 0.3 is representing कि if we divide the whole body into 10 equal parts, then we are taking 3 parts into consideration. You may say कि सर ये डेसिमल के बाद जो हम नंबर लिखते हैं क्या ये आउट ऑफ 10 में ही काउंट करना होगा हमेशा? ये जरूरी है कि मुझे 10 ही पार्ट करने हैं, यहाँ पे ये कंसीडर नहीं हो सकता? कैन आई राइट इट एज 0.1? मैंने 2 में से एक पार्ट लिया तो मैं कहूँगा नहीं बेटे, इसको जो मैं 10th वर्ड कह रहा हूँ, 10th प्लेस, ये कह ही इसलिए रहा हूँ बिकॉज आफ्टर डेसिमल यहां पर जो भी आप नंबर लिखेंगे वो आउट ऑफ 10 ही होना चाहिए. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड 10th पार्ट. यहां पर मैं इसको अगर 0.1 बोलूंगा तो ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने यहां 10 पार्ट नहीं किए. अगर मैंने इसके 10 पार्ट किए होते तो क्या होता? ये हाफ होता, 5 पार्ट मुझे इधर बनाने पड़ते, 1 2 3 4 5 इधर और 1 2 3 4 5 इधर. इन फैक्ट अगर मैं इसके 10 पार्ट करता हूं देन इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग 1 आउट ऑफ 10, एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटिंग 5 आउट ऑफ 10. सो इन डेसिमल इट इज एक्चुअली 0.5. इन फ्रैक्शन इट इज 1/2. नो डाउट it can be also written as 5 out of 10. You can write like this also, but you know that very well कि we can write it in short form like 1/2, 5 1 ja 5, 5 2 ja 10. So in fraction 5 upon 10 and 1/2 is the same thing, but in fraction I cannot like it is 2 out of 1, so I can write it as 0.1. No बेटा no, बिल्कुल नहीं. अगर आपको यहाँ पर डेसिमल में जस्ट आफ्टर द डेसिमल प्लेस लेना है तो ये वही नंबर लिखा जाएगा जो आउट ऑफ 10 लिया गया हो. डेसिमल में इस बात का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सर मैंने तो 7 पार्ट करके लिए, अब मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूं. यू कैन डू दैट. मैं ये दिखा देता हूं, हालांकि अभी इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं है. बाय द वे यू हैव अ बॉडी एंड आपने इसके 1 2 3 4 5 6, चलिए मैं 7 पार्ट कर देता हूँ जिससे ज़्यादा इजी ना रहे. सो यू हैव टेकन 7 पार्ट एंड यू आर टेकिंग सपोज 3 आउट ऑफ दिस 7. तो इन फ्रैक्शन इट कैन बी रिटन एज 3/7. लेकिन अगर आपने इसको लिखा कि सर क्या इसको 0.3 लिख सकते हैं, तो ये गलत है, इट इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने इसके ये दीज 3 आर नॉट आउट ऑफ 10. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है सर फिर इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे. इसका एक ही तरीका है, आप 7 से ऐसे 3 को डिवाइड कीजिए. सिंपल. 0.0 4 जा 28 2 2 जा 14 है ना, वो जो भी आप रूल होता है 6 फिर 60 एंड सो ऑन. ऐसे करके तो आप डेसिमल में आइडिया लगा सकते हैं. ये 0.4 आने का क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि अगर हमने इतने के ही 10 पार्ट किए होते तो ये कुछ 4 और 5 के बीच में कुछ पार्ट में होता. फिर से मैं एक बार बोल देता हूं इस बात का मतलब क्या है. ये 0.42 आया. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर मैंने इतनी ही लेंथ के इंस्टेड ऑफ डूइंग 7 पार्ट, इफ आई एम डिवाइडिंग दैट लेंथ इनटू 10 पार्ट, तो ये एरिया कितना कवर करता. अगर मैं इतने ही पोर्शन के, समझिए, चलिए मैं एक चीज करके यहां आपको दिखाता हूं. ये है एज इट इज है बिल्कुल, है ना, और मुझे इतने पार्ट कवर करना है. अगर मैं इसके 10 पार्ट करता हूं, 1 2 3 4, 10 तो नहीं हो पाएंगे, थोड़े छोटे छोटे करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 0.42 का मतलब है कि ये 4 वाला जो पार्ट है उससे थोड़ा सा और आगे तक बढ़ जाएगा. ये देख रहे हैं ना, ये करेक्ट. तो ये यहां पर 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैंने इसको आउट ऑफ 10 कर लिया होता
तो ये 0.42 से ही आता। अभी आप कह सकते हैं कि सर ये तो परेशान कर रहा है, डेफिनेटली अभी कर रहा होगा, बिकॉज यू आर इन क्लास 6 नाउ। अभी एकदम आप इतना एनालॉगस नहीं कर पाएंगे, एनालॉग नहीं कर पाएंगे, उतना रिजेम्बलेंस नहीं कर पाएंगे इमीडिएटली। लेकिन अभी हम एक बात को फिर से समझते हैं। तो हम यहाँ डेसिमल में क्या समझें? अभी हमें सिर्फ डेसिमल में इतना समझना है, नंबर 1, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ होल थिंग। हम केवल किसी भी जो होल थिंग है उसके पार्ट्स को कंसीडर करेंगे, और हमारा जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है जिसको हमें डेसिमल में समझना है, हम उसके पहले 10 पार्ट करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि जितना भी हमने हिस्सा लिया है ये 10 पार्ट में कितना आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आउट ऑफ 10 पार्ट हम कितना ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डेसिमल। और ये डेसिमल पॉइंट के इमीडिएटली बाद में लिखा जाएगा। बेसिकली ये 10th पार्ट के लिए ही रिप्रेजेंट करता है। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं, तब आप और इस बात को शायद अच्छे से रिजेंबल कर पाएंगे और समझिएगा अभी। हाँ, चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, है ना, तब शायद आप समझ पाए। मान लीजिए किसी ने मुझसे ये कहा कि सर एक नंबर लिखा हुआ है 23.5, इसका हम क्या मतलब समझें? 23.5 व्हाट डज इट मीन? ठीक है, चलो अभी थोड़ा छोटा लेते हैं। 3.5 इसका क्या मतलब मान के चले? इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक बॉडी पूरी है, दूसरी बॉडी पूरी है, तीसरी बॉडी भी कंप्लीट है। ये मेरे कंसीडरेशन के पार्ट हैं। 3 तो ये पूरे हो गए। ओके, अब है 0.5। अब जो चौथी बॉडी है, अब ये डेसिमल के बाद आ गया, इट इज द 10th पार्ट नाउ। तो अब मैं पहले इसके 10 पार्ट करता हूं। चलिए मान लीजिए ये मिडिल पॉइंट है, तो 5 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आई हैव 5 पार्ट आउट ऑफ देम। दैट इज एक्चुअली 3.5। यानी मेरे पास 3 चीजें तो कंप्लीट हैं और जो दूसरी है वो आधी है, 1/2 है। यानी 10 में से 5 हाफ ही हो गया ना। चॉकलेट देखिए आप लोगों ने, मान लीजिए आप एक चॉकलेट मार्केट से खरीद के लाए, उसमें ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे बार लगी हुई हैं। आपने तोड़ के इतना ले लिया चॉकलेट, तो आप या तो ये कह सकते हैं कि मैंने 3/10 पार्ट लिया। डेसिमल में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने 0.3 चॉकलेट लिया है, क्योंकि यहां इसके 10 पार्ट आपने किए हुए हैं। समझ रहे हैं आप? पूरी चॉकलेट हो जाती, मान लीजिए आप कहते हैं सर घर पे तो 2 चॉकलेट आई थी, एक और आई थी ऐसी ही, ये तो मैंने पूरी खा ली थी मौका देख के। तो आपने 1 तो ये पूरी खाई ली है, प्लस 0.3 और ली है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3, एक पूरी और एक के 3 पार्ट आउट ऑफ 10 ये मैंने ले लिए हैं। ठीक, अब मैंने मान लीजिए मैंने इसको रिवर्स कहा कि अच्छा बेटा ये बताना है जरा 1.3 का क्या मतलब है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है एक तो 1 है और प्लस ये 0.3 है, या ऐसे कह दीजिए ये 1 है प्लस ये 3 आउट ऑफ 10 है। इतनी चॉकलेट खाई है मैंने। यू कैन डू लाइक दैट। बात समझ में आई है? अच्छा सुनो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 30 + 6 + 2/10। इसको कैसे लिखोगे आप? सुनिए, आप इसको 30 + 6 तो 36 होता है, तो आप जानते हैं। डेसिमल वहां लगेगा जहां से 10th पार्ट आने लगे, पॉइंट, एंड इट कैन बी रिटन एज 2। देखो यहां ऑब्जर्विंग, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इट इज 36.2
2 हो गया। अच्छा एक और देखते हैं, ये आपकी बुक में ही है। मान लीजिए मैंने लिखा 600 प्लस 35 प्लस 4 प्लस 9/10। इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 5 + 4 9। चलिए हो गया 3 + 0 3 6.9। 9/10 इज रिटन एज 0.9 0.9। रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे दे रखा है तो ऐसे भी करके लिखा जा सकता है। इसकी भी प्रैक्टिस कर लें एक आध। चलिए एक आध इसको भी करके देखते हैं, ठीक है। अगर ऐसे मुझे दे रखा हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हाँ करके देखते हैं जरा थोड़ा सा। इसको पॉज करके नोट करना चाहें कर लीजिए। एक और देखते हैं जरा, इसी तरीके का बना करके देखते हैं। इसमें ना हम डेसिमल लिखेंगे और फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 231.7, तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 200 + 30 + 1, ठीक है। ऐसे मत लिख देना 2 + 3 + 1, ऐसे लिख दिया तो गलत। दैट इज 200, दैट इज 31 + 7/10। अगर डेसिमल है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक थोड़ा देखो कॉम्प्लिकेटेड केस दिखाता हूं तुम्हें। 301.2, इसे कैसे लिखेंगे? 300 प्लस, अब चाहे तो आप 0 लिख लीजिए ऐसे, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है, +1 + 2/10, या आपका मन करे ऐसे भी लिख सकते हैं 300 + 1 + 2/10। देयर इज नो प्रॉब्लम, जैसे आपका मन करे, जैसे आपको बढ़िया लगे वैसे लिखिए। देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। अच्छा और एक नंबर देखते हैं, और एक नंबर देखते हैं। एक नंबर देखते हैं कि अगर आपको मैं कहूं बेटा इस नंबर को बताओ डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करोगे? मान लीजिए मैंने आपसे नंबर कहा 37/5, इसको डेसिमल में बताइए कैसे करना है। आप कहेंगे सर देखो दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, 5 से डिवाइड कीजिए 37 को, 5 5 = 35, बचेगा 2, डेसिमल लगाइए 0 लगाइए 0.4, हो गया। ठीक है, ये गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है। ओके चलिए 5 7 = 35 होता है। अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए आपने मान लिया। तो बेटे ये मेरे पास आ गया एक मेथड, लेकिन मेरे पास एक और मेथड भी है। मैं देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं। मुझे पता है कि जब मैं इसको करना शुरू करूंगा, मुझे सबसे पहले ना इसके नीचे 10 बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ 5 की जगह क्या बनाने की कोशिश करनी चाहिए? 10, क्योंकि अपॉन आउट ऑफ 10 ही लेते हैं ना हम फ्रैक्शन में, उससे बड़े आसानी से हमें पता लग जाता है। देखो कैसे, यहाँ 2 जा करेंगे तो भाई फिर यहाँ भी 2 जा करना पड़ेगा। अच्छा 37 2 जा, ये 74 ही होता है, डिवाइडेड बाई 10। अब इसको दो इक्वल नंबर में लिख लीजिए, 70 अलग और 4 अलग। यहां भी अपॉन 10 और यहां भी अपॉन 10, तो 70/10 क्या हो जाएगा? ये तो 7 हो जाएगा। और 4/10 को आप कैसे लिख सकते हैं? 0.4। आगे यही चीज, इट कैन बी रिटन एज 7.4। और एक देखते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है। इन्होंने लिखा है, इसको बताइए 11/5 को कैसे लिखेंगे। आपने कहा सर नीचे 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 22 हो जाएगा। 22 कैन बी रिटन एज 20 + 2, यहाँ भी अपॉन 10, यहाँ भी अपॉन 10, 20/2 तो 2 हो गया, और ये 0.2। या चलिए और अभी एक थोड़ी लेंथी प्रोसीजर अपनाते हैं, 2 + 0.2 विच इज 2.2। कर सकते हैं ना ऐसे? क्यों कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी तरीके हैं। एक रूल ये भी है कि अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में डेसिमल मान के एक प्लेस डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट किया जा सकता है। चलिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, उसे और समझो।
मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि बेटा एक नंबर है 7 डिवाइडेड बाई 2, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। पहला तरीका तो आपको पता ही है, इसको तो मैं बात ही नहीं करूंगा कि 2 3 जा 6 बचा 1 डेसिमल 0 5 जा, है ना। एक तो ये तरीका तो है ही, ये तो हम जानते हैं। अब मैं तो दूसरा तरीका देख रहा हूं, मुझे नीचे 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए यहां किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो यहां भी भाई 5 से करो, तो ये क्या बन गया 35/10। अब जब कोई भी नंबर है आपको गिवन है एंड यू वांट टू डिवाइड इट बाय 10, तो क्या करें हम, कैसे डिवाइड करें? क्या ऐसे डिवाइड करके देखें 10 जा? नहीं, आंसर है ऐसे नहीं करो। सबसे पहले क्या करो, जो भी नंबर है ना उसके लास्ट में डेसिमल मान लो, ऐसे है ही नहीं उसमें कुछ आगे, और इसको ऐसे लिख लो। अब ये देखिए 10 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो है। इस 1 जीरो, अगर 1 जीरो जितने जीरो हो डेसिमल को उतना ही डिजिट लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दो डिवाइड करने पर, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये 10 तो हट जाएगा और यहां डेसिमल यहां पर आ जाएगा और ये 10 हट जाएगा। अगर आप कहेंगे सर अगर 100 से कर रहे होते तो 2 जीरो है तो हम 2 प्लेस ले आते, लेकिन वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। अभी तो हम खाली 10th पार्ट ही समझ रहे हैं, तो हमारे सारे क्वेश्चन इसी बात पर डिपेंड रहेंगे कि 10 से डिवाइड करने पे क्या होने जा रहा है। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और देखते हैं, इनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा कि सर 3.4 को शो 3.4 ऑन नंबर लाइन। ओके, तो देखिए नंबर लाइन आप बनाएंगे कैसे। सबसे पहले 0 और उसके बाद 1 2 3 4 5 थोड़ा बड़ा, 6 7 8 9 10th वाले नंबर पे लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां आ गया 2। अभी मुझे 3 तक चाहिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहां आ गया 3। एंड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहां आ गया 4। अब 3.4 इज इन बिटवीन 3 एंड 4। ये 3 से थोड़ा सा बड़ा है और 4 से ये थोड़ा सा छोटा है, तो ये 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3.4 लाने के लिए 3.1 3.2 3.3 3.4, तो ये जो नंबर है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग 3.4। तो ऐसे आप किसी भी नंबर को शो करके दिखा सकते हैं जिसे आपका मन करे। ठीक, तो देखिए हमने क्या समझा आज, क्या छोटी छोटी बातें हमने समझी। नंबर 1 तो हमने समझा कि डेसिमल इज यूज्ड टू शो द पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। आज हमने डेसिमल ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, हमने बस केवल 10th पार्ट पढ़ा। 10th पार्ट बेसिकली क्या बताता है कि इफ अ होल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, then how many parts we are taken into consideration? If we are taking into consideration 3 parts out of 10, then it can be written as 0.3. ठीक, जितने भी पार्ट आप लेना चाहें। एक हमने जो और इसमें यहाँ पर नई चीज समझी थी, वो क्या समझी थी कि भाई मान लीजिए मुझे किसी ने डिजिट दे दिया 207.4, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट, इसको एलोबरेट करके कैसे दिखा सकता हूं, है ना, समझ में? या मान लीजिए मुझे एलोबरेट करके दिखा दिया गया है तो मैं डिजिट कैसे लिख सकता हूं। ये सारी चीजें हैं, यही समझी ना आज हमने। ठीक, पक्का क्लियर हुई ये चीज आप सबको? चलिए, वेल एंड नाइस, यही बस हम चाहते थे कि आपको ये चीजें क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर, ठीक है। आज हाँ सुनिए, मेरे कुछ असाइनमेंट पहुंचेंगे आपके पास, उनको करने की कोशिश करना और उसके सॉल्यूशन हम आपको टुमारो देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।